Hello friends, good morning. I am Nani Jangir here and welcome to you all in my online class Masti Maths classes with me. And today we will discuss about our new topic, chapter number 12, Heron's formula. This is maths topic of your NCERT class 9th. In this chapter we will learn that how can we find out the area of a triangle if it is an scalene triangle. Now first of all, you have to know that what is an scalene triangle. A triangle in which all three sides are unequal, like first is 3, second is 4, third is 5 centimeter. In a right angle triangle, you can find out the area by this one, area of the triangle 1 upon 2 base into height. Very easy. This formula is very easy. But if you don't have an height, if you don't have any height in a triangle, perpendicular in a triangle, altitude in a triangle, then how can you find out the area of the triangle? This is the major problem with us. So for this solution I am here, so we will start. Okay, Heron's formula. In this chapter you have to learn to find out the area of scalene triangle. Suppose that this is a triangle ABC, here is 3, 4 is 3 and in 5 centimeter. Find out the area. Without height, we can't find out the area by this formula. We need height. So, to calculate the area of this type of triangle, we use the Heron's formula. This is first of all S. S means semi-parameter. First of all, calculate the parameter of the triangle. 3, 4, 5, addition of 3, 4, 5 means A plus B plus C upon 2. This is semi-parameter. Parameter A plus B plus C upon 2, semi-parameter. Then after, formula of area. This is S, semi-parameter. S minus A, first side. S minus B, second side. And S minus C, third side. And overall, under root, square unit. Square unit, your answer. So this pattern we will follow in this chapter. Okay, so let's begin our exercise number 12.1. For the question number first is there. This is the Heron's formula, area of the triangle S, S minus A, S minus B and S minus C. Here S is equals to semi-parameter like this, A plus B plus C upon 2. We can find out the semi-parameter. Okay, so this is your exercise number 12.1. This is exercise number 12.1 is there. So let's begin. Question number first is there. A traffic signal board indicating school ahead. आपके पास में एक ट्रैफिक इंडिकेटर है, इंडिकेटिंग बोर्ड है जिसमें आपको लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है. स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप. वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप में है. मतलब जो अभी मैंने बताया था इस टाइप से A, B, C. यहां पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड. ऐसे. और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये अगर साइड A है तो ये भी A होगी और ये भी A ही होगी. फाइंड आउट द एरिया, लिखा हुआ भी ये साइड A. फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग Heron's formula. This is an equilateral triangle we know. And the area of the equilateral triangle formula, root 3 by 4 side square. Root 3 by 4 side square we have, but we don't use. We are not able to use this formula in this question because here is the notification that using Heron's formula. Okay. तो देखिए करना कैसा है. सबसे पहले तो आपके पास में आता है सेमी पैरामीटर. क्या आता है? सेमी पैरामीटर, जो मैंने आपको बताया कि कैसे निकालना है. A प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या करना है? 2 करना है. अब इसकी A क्या है?
पहली साइड ए है, दूसरी भी ए है और तीसरी भी ए है, और अपॉन में कौन चला गया, 2 चला गया, तो ये कितना हो गया 3/2। कौन हो गया, कौन हो गया, ये इसका सेमी पैरामीटर हो गया। अब हमारे पास में फॉर्मूला आता है कौन सा वाला, देखिए एरिया। एरिया हमारे पास में आता है एस माइनस ए माइनस बी और माइनस सी, साथ में आता है अंडर रूट। ये चीज इसमें रखनी है। सबसे पहले हमारे पास में आता है 3a/2, फिर 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, फिर से, और फिर से 3a/2 माइनस ए। क्यों? क्योंकि सारी साइड्स बराबर हैं, ए भी ए के बराबर है, बी और सी भी ए के बराबर है, तो इसका मतलब हमारे पास में क्या हो गया 3a/2 और ये हो गया 3a/2 माइनस ए होल क्यूब और रूट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना, देखिए ये हमारे पास में हो गया 3a/2, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो गया 3a/2 माइनस 2a/, मतलब ये चला गया अपने पास में एलसीएम में। अब ये बच गया a/2 क्यूब, अंडर रूट तो चलेगा ही, ये रहा। ठीक है, उसके बाद में ये अगर क्यूब है तो इसे अगर सॉल्व किया जाए तो 3a इंटू ए क्यूब अपॉन 8/2 अंडर रूट, और उसके बाद में ये हो जाएगा 3a⁴/16, और अगर इसको भी सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा √3/4a²। ये हो गया आपका इसका फॉर्मूला। क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब a कितना था, अब a कितना था वो हमें निकालना। देखिए मतलब हम इसे से निकाल सकते हैं, हम इसे से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने ये चीज यहां पे नोट डाउन कर ली कि अगर इसको ऐसे सॉल्व किया है तो हमारे पास में इसका आंसर ये आएगा। अब a कितनी है, यहां से 180 सेंटीमीटर पैरामीटर दे रखा है, तो इसकी साइड कितनी होगी ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए पैरामीटर अगर 180 सेंटीमीटर दे रखी है तो साइड कितनी होगी, मतलब सेमी पैरामीटर कितना होगा, अगर साइड कितनी होगी, तो अगर ये निकाल लिया जाए तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर की साइड होगी। सेमी पैरामीटर नहीं निकाल रहे हम, साइड निकाल रहे हैं। तीनों साइड्स बराबर है, 3 का डिवाइड कर दिया, 60 सेंटीमीटर क्या आ गया, एक साइड आ गई, तो यहां पे हमें सिर्फ 60 रखना है और हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए √3/4 साइन स्क्वायर। अब ये मत सोचना है कि ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया, नहीं, मैंने यहां से इसको यहां पे लेकर उसके बाद में मैंने पुट अप किया है। तो √3/4 इंटू 60 कट कर दो। देखिए 2 से 30 टाइम और 2 से 30 टाइम, मतलब 900 आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया पहला, ये आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहां पे हमारे पास में डायग्राम बना हुआ है। द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाई ओवर, ये फ्लाई ओवर है और इसके ट्रायंगुलर साइड्स अपने पास में दे रखी है। यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट लगाया रखा है और द साइड ऑफ द वॉल आर 120 मीटर। सी इन द फिगर द एडवर्टाइजमेंट yield an earning of ₹5,000 per मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लगाने का खर्चा दे रखा 5,000 पर मीटर स्क्वायर। एक कंपनी ने इसे हायर कर लिया 3 मंथ्स के लिए, तो बताइए उसे कितना रेंट पे करना पड़ेगा। वेरी सिंपल, आपको इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ वॉल। एरिया ऑफ वॉल
ये आपको निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। और एस कैसे निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी निकलता है। ए प्लस बी प्लस सी निकलता है, ये ध्यान रखना आप, और अपॉन में 2 भी चलता है। इसका मतलब हो गया 122 प्लस में 22 और प्लस में 120 अपॉन में कितना चला गया, 2 चला गया। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, सेमी पैरामीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो गया, 12 24 25 26 मतलब अपॉन में 2, ये हो गया 2 मीटर। 132 मीटर हो गया ये हमारे पास में, क्यों हो गया, सेमी पैरामीटर हो गया। अब हमारे पास में आएगा एरिया, वो होता है 132 माइनस फर्स्ट साइड, 132 माइनस सेकेंड साइड, और 132 माइनस थर्ड साइड, और रूट पूरे पे। ठीक है, अच्छा आगे की बात करते हैं। तो ये हो गया 132 इंटू में ये हमारे पास में आ गया 10, इंटू में ये हमारे पास में कितना आ गया 110 आ गया, और ये कितना आ गया, ये हमारे पास में आ गया 2, कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, ये चल रहा है हमारे पास में कौन, अंडर रूट चल रहा है। 132 ऐसे कैसे, 132 में से 22 जब चला गया तो हमारे पास में 10 बच गया। 132 में से 22 चला गया, सिर्फ 22 चला गया, तो हमारे पास में 110 बच गया, और यहाँ पे 12 बच गया। अब हमें क्या करना है, इसका रूट निकालना। रूट निकालने की दिक्कत आ गई कि इनको सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं, हमें सिर्फ फैक्टर करना है, इसके छोटे छोटे पार्टीशन करना है। देखिए 132 का मतलब हो गया 11 इंटू 12, ये था 10, ये हो गया 11 इंटू 10, और ये हो गया 12, छोटा सा पार्ट। अब ये 11 2 टाइम आ रहा है, तो यहां पे आ गया 1 टाइम, ये 12 2 टाइम आ गया, यहां पे आ गया 1 टाइम, और ये 10 2 टाइम आ गया, तो यहां पे आ गया 1 टाइम। ये हमारे पास में कौन आ गया, एरिया आ गया। देखिए 12 132, तो ये ऐसे कैसे था 132 और 0 लग गया, मीटर स्क्वायर हमारे पास में कौन आ गया, इसका एरिया आ गया। लेकिन हमें निकालना था इसका पेमेंट, तो यहां पे निकालते हैं क्या, पेमेंट। पेमेंट हम निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग, 132 मीटर स्क्वायर, इतना हमें कवर किया है, 5,000 रुपए लगेंगे। साल भर के हैं तो ये लो 1 महीने का, लेकिन पूछा कितने था, 3 महीने का। पूछा कितने का था, 3 मंथ्स का, ये तो ईयरली का था, तो ये हो गया 4 टाइम। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा 50, और इसको भी कट कर दो, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए 660 इंटू 2500 हमारे पास में कौन आ जाएगा, रुपए आ जाएंगे। कौन आ जाएगा, रुपए आ जाएंगे। अब 25 से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बता रखा है। क्या बता रखा है, तरीका बता रखा है कि जो भी हमारे पास वैल्यू दे रखी है उसका 4 टाइम कर दो, 4th कर दो, 4 टाइम 4th कर दो, मतलब 4 का डिवाइड कर दो। और अगर नहीं करना है तो 25 की टेबल बोल लो। तो देखिए 25 की टेबल बोले, 4 कर लेते हैं। इसका हम 4th करते हैं, तो 4 बन जाए 4, 5 6 2, 4 6 जा 24, कितना हो गया, ये लो 4 टाइम कर दिया। 2 0 हमें लगाना था, क्यों, क्योंकि हमने 25 से मल्टीप्लाई कर लिया इसको, और 1 0 तो हमारे पास में पहले से ही था। 2 0 ये भी तो है, ये 2 0 ये वाले हैं, ये 1 0 ये वाला, और 2 0 हमें फ्री में लगाने थे। ये हो गया आपका आंसर, सेकंड नंबर क्वेश्चन आंसर सॉल्व। ठीक है, और उसके बाद में आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 60 क्वेश्चन से फटाफट से एक्सरसाइज हो जाएगी। देयर इज अ साइड इन अ पार्क
एक स्लाइड दे रखी है आपके पास में, एक पार्क में दे रखी है, ऑन वन ऑफ इट साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन, ये हमें पेंटेड करनी है और यहाँ पे लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन. See in the figure, if the side of the wall are 15, this one 6 and 11, then find out the area. तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सेमी पैरामीटर निकालेंगे. वो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है, अपॉन में 2 होता है, और उसके बाद में हम क्या लगा देंगे, एरिया लगा देंगे. वो कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये वाला फॉर्मूला हो गया. कुछ नहीं करना, बस आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन या सेकंड वाले क्वेश्चन के जैसे ही आपको सॉल्व करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कर लेंगे आप. रूट लगाना मत भूलना. नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 4. देखिए बिल्कुल सेम सा था, इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ा है. नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18, 10 एंड द पैरामीटर इज 42. तो यहां पे हमारे पास में फर्स्ट साइड दे रखी है 18, सेकेंड साइड हमारे पास में दे रखी है 10, पैरामीटर दे रखा है 42. तो थर्ड साइड कितनी होगी, 42 में से 18 और 10 का एडिशन माइनस कर दो तो हमारे पास में कौन आ जाएगा, थर्ड साइड आ जाएगी. तो कितनी आ जाएगी, 42 में से कितना, 28 को हटा दो. देखो 12 में से 8 गया तो 4 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, 3 में से 2 गया तो 1. ये आपकी फोर्थ साइड, सॉरी थर्ड साइड. अब आपको क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द एरिया पूछा गया है. ये लो, S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, मतलब पैरामीटर कितना दे रखा था, 42 दे रखा था, अपॉन में 2 कर दो तो ये हो गया 21 सेंटीमीटर. पैरामीटर तो आ गया, अब एरिया निकालना है. तो क्या बचेगा, देखो S माइनस A माइनस बी माइनस सी, और रूट वाला फॉर्मूला हमें लगाना है. S का मतलब हो गया 21 में से पहला गया 18, फिर 21 में से दूसरा गया 10, और 21 में से तीसरा गया 14. प्रॉब्लम आएगी रूट निकालने में, वो बता देता हूं. देखो 21 इंटू 18 गया, 3 बच गया, 10 गया, 11 बच गया, इंटू 14 गया तो कितना बच गया, 7 बच गया. ठीक है. अब बात आती है इसकी. ओके तो देखिए यहां पे 21 का मतलब होता है 7 इंटू 3 ऑलरेडी दे रखा है, 11 दे रखा है, 7 दे रखा है. 7 आ गया 2 टाइम बाहर निकाल लो, 3 आ गया 2 टाइम बाहर निकाल लो, बाकी कौन बच गया, 11 बच गया. मतलब हमारा आंसर हो गया 21 रूट 3, सॉरी रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अपन. साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो दे रखा है, वेरी इजी. पैरामीटर भी दे रखा है, ये तो और भी इजी हो गया, 540. देखिए पैरामीटर हमारे पास में दे रखा है 540, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. 12x, 17x और 25x ये हमें दे रखा है. ऐड कर दो. पैरामीटर हमारे पास में क्या बनता है, देखिए पैरामीटर हमारे पास में बनता है a प्लस बी प्लस सी बनता है. ये हमें 540 सेंटीमीटर दे रखा है. पहला साइड कितना है, 12x दे रखा है, दूसरा 17x दे रखा है, तीसरा 25x दे रखा है. तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. 540 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 12 प्लस 25 और प्लस 17, इनको ऐड कर दो और इसमें ऐड कर दो. देखिए 17 और 12 कितना होता है, 29 होता है. 29 होता है और 29 इस 25 में ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 9 4 14 होता है और ये हो गया 54x. इससे इसको क्रॉस कर दो तो हमारे पास में 10 सेंटीमीटर कौन आ गया, x आ गया. इसका मतलब पहले साइड कौन हो गई, पहली साइड हमारे पास में 12x, इसका मतलब 12 इंटू 10 120 आ गई. दूसरी साइड हमारे पास में कितनी थी, 17x, मतलब 17 इंटू 10
170 आ गई। और तीसरी साइड हमारे पास में थी कितनी, 25x मतलब 25 इंटू 10, ये 250 सेंटीमीटर हमारे पास में आ गई। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड आउट द एरिया पूछा है, तो हमें क्या करना है, पैरामीटर तो 540 दे रखा था, तो हमें इसका तो क्या करना है, हाफ करना है। ये तो हो गया सेमी पैरामीटर, और उसके बाद में क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। कौन सा वाला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, आपको फॉर्मूला लगाना है और क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपका काम। 6 वाला देखिए, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पैरामीटर 30, ये दे रखा है हमारे पास में, पैरामीटर कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द एरिया। हर एक इक्वल साइड 12 दे रखी है, मतलब पहली साइड 12, दूसरी साइड 12, तीसरी साइड हमारे पास में 30 में से 12 प्लस 12 को हटा दो तो कितनी आ गई, देखिए 30 में से 24 जब चला गया तो बच गया हमारे पास में 6 सेंटीमीटर बच गया। ये कौन है, बेस हो गया। एरिया निकालना है, एरिया हमारे पास में सेमी पैरामीटर का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है, जो कि हमें दे रखा है 30 अपॉन 2, मतलब ये हो गया 15 सेंटीमीटर। और उसके बाद में एरिया का फॉर्मूला लगा दो, फिर से बता रहा हूं मैं 15 में से पहली साइड आपको हटानी है, पहला का मतलब होगा 12 हटाना है, उसके बाद में फिर से दूसरी हटानी है और फिर से तीसरी भी हटानी है। और लगाना क्या है, रूट लगाना है बस। तो 15 हो गया, इंटू में 3 हो गया, इंटू में 3 हो गया, और इंटू में कितना हो गया, 9 हो गया। अब बात आती है रूट की, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ब्रेक करना है। 15 का मतलब होता है 5 इंटू 3, ये 3 ऑलरेडी दे रखा था, एक और 3 दे रखा था, और 9 का मतलब होता है 3 इंटू 3 होता है। बस काम खत्म, ये 2 और ये 2, मतलब 1 और 2, बाकी कौन रह गया, 15 अंदर रह गया, मतलब 9 रूट 15 सेंटीमीटर। आपका क्या आ गया, ये आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो देखिए कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन को और ये एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया। ये थी आपके पास में 12.1 हीरोन्स फॉर्मूला, और यही चीज आपको प्रैक्टिस करनी है, और इसी चीज को आपको 12.2 में फॉलो करना है, जो कि हमारी रहेगी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो आज के लिए इतना काफी है, तब तक के लिए थैंक यू।